Periods are natural, conversation around them should be too. This Menstrual Hygiene Day, Radio City and Team Alembic, the makers of Krina NCR, invite you to join an open discussion on menstrual health, hygiene, and understanding your body better. Hello and welcome to the Period Talk with Experts, a special podcast series where we openly and honestly talk about women's health. Because understanding your body should never feel uncomfortable. I'm your host, Ishan Devre. And today we are going to discuss about a topic which affects almost each and every woman. But yet, it is often surrounded by some myths, some hesitation and silence as well. It's menstrual health and hygiene. Also, we are going to discuss about what is a normal period, what does heavy bleeding means, and when to consult or when to take advice, and also some common gynecological concerns which a woman should never ignore. And yes, today we are having Dr. Nidhi Kalkal Sonone, MS OBGY and a practicing gynecologist in Amravati since last 12 years. So welcome doctor to the show. Namaste. Thank you for having me here, especially for this very important topic of menstruation in a country like India, where people are shy and they are reluctant to talk on these type of topics. So doctor, let's start with the basic. What exactly is considered a normal menstrual cycle? See, a normal menstrual cycle depends on the age of the woman, the ethnicity also, and usually it occurs from 21 to 35 days. So 21 से 35 दिन तक हम usually उसको normal menstrual cycle पकड़ते हैं, and it usually goes for around 2 to 7 days. 2 से 7 दिन तक usually वो चलती है. बट हर किसी की menstrual cycle उसके बॉडी के हिसाब से हो सकती है. जो कॉमन चीज़ हम उसमें देखते हैं वो ये है कि उसमें कोई वेरिएशन है क्या. So the normal frequency, the normal blood flow, the normal pain pattern which the patient had earlier, and now it has changed. So that change is very important. अगर उसमें कुछ बदलाव है, आपको कम पेन होता था, अब आपको पेन बढ़ गया, या आपका फ्लो पहले कम जाता था, बढ़ गया, या फिर फ्लो काफ़ी कम हो गया है, या पीरियड्स बहुत ज़्यादा लंबे हो गए या छोटे हो गए, या आपको क्लॉट्स पास होने लगे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ना कि ये कि इसको 2 days पीरियड आ रहे हैं, इसको 4 days आ रहे हैं. कई बार पेशेंट्स आते हैं हमारे पास और बोलते हैं कि मैडम मेरी एज में तो मुझे 4 days पीरियड आना चाहिए, मेरी सारी फ्रेंड्स को आता है, पर मुझे 2 days ही आता है. बट देन व्हेन वी आस्क देम तो दे ऑलरेडी हैव अ चाइल्ड, उनको एक बेबी रहता है. स्टिल बस उनको ये लगता है कि अंदर कुछ तो कचरा है जो पूरी तरीके से मेरा नहीं निकल रहा है, जिसकी वजह से उनको साइकोलॉजिकली भी कई बार ऐसा लगता है कि मुझे लोअर एब्डोमिनल पेन है, पेट में कहीं तो नीचे दुख रहा है. सो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इंडियन वुमेन का कि वो आपस में ही बात करते हैं. दे डोंट सीक डॉक्टर्स एडवाइस. वो आपस में बात करते हैं एंड देयर आर वेरी मिथ्स. जैसे आपने अभी वेरी ट्रूली सेड, आपने स्टार्टिंग ऑफ द कन्वर्सेशन में बोला था कि देयर आर वेरी कॉमन मिथ्स अबाउट मेंस्ट्रुएशन. तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम देखा जाता है. बट यूजुअली आपका जो पैटर्न है वो आपका पैटर्न है. इफ़ यू आर मतलब ब्लीडिंग फॉर अराउंड 2 to 7 days इट इज़ ओके, एंड 30 days के प्लस माइनस 7-8 days आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल है, सो दैट इज़ ऑल्सो ओके. बट उसमें कुछ चेंज होता है, सिग्निफिकेंट चेंज है, तो आपने डेफिनेटली डॉक्टर्स एडवाइस सीख करनी चाहिए. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट मेंस्ट्रुअल हाइजीन. क्योंकि मतलब आज भी हम देखते हैं कि कई सारी लड़कियों का जब उनका फर्स्ट पीरियड आता है मैम, सो लाइक दे डोंट रिसीव द राइट इन्फॉर्मेशन, दे रिसीव इनकरेक्ट, इनअप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन. एंड हमने देखा है कि हाल ही में ये मेंस्ट्रुअल हाइजीन का जो मुद्दा है नेशनल लेवल पर भी आ चुका है, because the Supreme Court of India has emphasized the importance of menstrual health facilities, menstrual hygiene, and the awareness in schools as well. So I wanted to ask that what's your take and what's your point on this? See, menstrual hygiene डेफिनेटली एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो जिसमें इंपॉर्टेंट रोल आता है पेरेंट्स का और टीचर्स का. सो पेरेंट्स ने घर पे बहुत अच्छे से लड़कियों को समझाना चाहिए, स्पेशली जब उनका फर्स्ट पीरियड आता है. और सेकंड आता है कि पीरियड शुरू होने के पहले ही जब लड़कियां 6th, 7th, 8th क्लास में होती हैं, तभी उनको स्कूल में उसके बारे में एजुकेशन देनी चाहिए. सो सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट अभी जजमेंट ही निकाला था कि सारे जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनमें कंपल्सरीली सारी लड़कियों को फ्री सैनिटरी नैपकिन प्रोवाइड होना चाहिए, और सेग्रीगेटेड टॉयलेट्स होने चाहिए. लाइक वेगळे वेगळे शौचालय असले पाहिजे, लड़कियों के अलग और लड़कों के अलग. ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो सारे गवर्नमेंट स्कूल्स ने फॉलो करना है. अगर वो नहीं फॉलो करते तो उनको पेनल्टी पे करनी पड़ती है. गवर्नमेंट स्कूल्स को ही क्यों सुप्रीम कोर्ट ने इतना एम्फेसाइज किया था ये करने के लिए? बिकॉज देयर इज समथिंग कॉल्ड पीरियड पॉवर्टी. पीरियड पॉवर्टी मतलब जो इंडिया में लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस को बिलोंग करने वाले लोग हैं वो अपने घर की लड़कियों को प्रॉपरली सैनिटरी नैपकिन्स प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से
पीरियड्स के टाइम पे लड़कियां सैनिटरी नैपकिन यूज़ नहीं कर पाती हैं, दे डोंट हैव इट, उनको पास होता नहीं है, जिसकी वजह से वो स्कूल नहीं जाती हैं। स्कूल नहीं जाने की वजह से एब्सेंटिज्म बढ़ता है धीरे धीरे करके, क्योंकि यंग लड़कियों को फ्लो भी ज़्यादा रहता है, तो धीरे धीरे करके स्कूल ड्रॉप आउट्स बढ़ते हैं। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो डॉक्टर जया ठाकुर ने ढूंढा था, मतलब शी फाउंड आउट कि इतना इंपॉर्टेंट है कि स्कूल ड्रॉप आउट्स हो जाते हैं गर्ल्स के प्यूबर्टल एज के बियॉन्ड, तो उसका मेन रीज़न ये था। तो इसके बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट फाइनल किया था कि गवर्नमेंट स्कूल्स ने सारी बेसिक चीज़ें प्रोवाइड करनी चाहिए, बेसिक एमिनिटीज़ में आ जाती हैं। सो लाइक राइट टू लाइफ एंड राइट टू डिग्निटी, आर्टिकल 21 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंडर सुप्रीम कोर्ट ने इसका जजमेंट फाइनल किया, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, मतलब बॉयज़ एंड गर्ल्स शुड हैव इक्वल राइट्स टू एजुकेशन, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे इसका ये फैक्टर आ जाता है। एंड उन्होंने ये भी कंपलसरी किया है कि जो मेल टीचर्स हैं और बॉयज़ हैं उनको भी मेंस्ट्रुएशन के बारे में बेसिक नॉलेज दी जाए, ताकि उनको मतलब दे शुड नॉट मेक फन ऑफ इट एंड दे शुड नॉट बी शाय अबाउट इट, है ना। एंड दे शुड रिस्पेक्ट देयर मदर्स, देयर सिस्टर्स, देयर वाइफ्स, देयर डॉटर्स, उनको उनके लिए रिस्पेक्ट आना चाहिए, बिकॉज मेंस्ट्रुएशन बेसिकली इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। उसमें कई लोगों को लगता है कि वो जो ब्लड है वो बहुत डर्टी है, लड़कियों से उस टाइम दूर रहना चाहिए, या लड़कियों ने किचन में नहीं जाना चाहिए, पानी को हाथ नहीं लगाना चाहिए। अब ये पुराने ज़माने की बातें हैं, तभी डिटॉल नहीं हुआ करता था, तभी कुछ आपके लिए प्रॉपर सोप्स नहीं होते थे जिससे कि आप अपने हाथों को सैनिटाइज कर पाए। बट देन अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टिल वो जो एक इंडियन माइंडसेट है वो अभी भी परसिस्ट कर रहा है कई लोगों के इसमें, स्पेशली लो सोशो इकोनॉमिक सोसाइटी में, जहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम देखा जाता है। बेसिकली मेंस्ट्रुअल हाइजीन की अगर हम बात करें तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन मेंटेन करना इज़ वेरी सिंपल। अगेन इसमें भी बहुत सारे मिथ्स हैं, लाइक लोग डिटॉल कई बार यूज़ करते हैं, बहुत सारे स्क्रबिंग एजेंट्स यूज़ करते हैं, उनको लगता है कि वजाइना से जो फ्लो आता है उस टाइम पे वो बहुत ही ख़राब फ्लो आता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। वो आपके यूट्रस के अंदर की बेसिकली एक लाइनिंग होती है, इफ आई वांट टू टेल यू, सो यूट्रस के अंदर की एक लाइनिंग होती है जो हर महीने तैयार होती है, और अगर बेबी उसमें रह जाए तो बेबी को वो ब्लड फ्लो प्रोवाइड करती है। सो इट इज़ सो नाइस। अगर वो बेबी उसमें नहीं रह गया, मतलब प्रेगनेंसी आपको नहीं रहती है, तो वो फ्लो ब्लड निकल जाता है और नेक्स्ट मंथ वो रिन्यू होता है, ताकि अगर इस महीने में प्रेगनेंसी ना रहे तो नेक्स्ट महीने में जब रहे तो बेबी को अच्छा ब्लड मिल पाए। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो अपने अंदर के लाइनिंग है, सेल्स की लाइनिंग है जो टूट के निकल जाती है हर महीने रिन्यू करने के लिए। तो ये कोई ख़राब ब्लड नहीं है, इट इज़ गुड ब्लड ओनली, बट हाँ डेफिनेटली वो वजाइनल रूट से निकलता है तो लोगों को लगता है वो डर्टी है, तो इसमें ऐसे कोई परेशान होने की बात नहीं है। नॉर्मल अपना नहाते टाइम पे जैसे अपन बाथिंग सोप से क्लीन करते हैं, गर्ल्स ने वैसे ही क्लीन करना है नहाते टाइम पे। एंड देन आफ्टर एवरी 4 to 6 आवर्स जैसे ही पैड चेंज करते हैं तो नॉर्मल पानी से क्लीन कर सकते हैं, बार बार सोप यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। एंड डिटॉल डेफिनेटली शुड नॉट बी यूज। डिटॉल इज़ अ बिग नो एनी टाइम, लाइक विदाउट मेंस्ट्रुएशन ऑल्सो, क्योंकि डिटॉल से क्या होता है कि आपकी जो नॉर्मल वजाइना की आर्मी है, वी कॉल इट आर्मी, लोकल जो इम्यूनिटी होती है, लोकल जो बैक्टीरिया होते हैं वो किल होते हैं, तो आपको आउटसाइड इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एंड देन डेफिनेटली आपको जो कॉटन, ब्रीदेबल कॉटन इनरवेयर पहनना चाहिए, ताकि फ्लो अच्छा, एयर फ्लो अच्छा मेंटेन रहे, वेंटिलेशन अच्छा मेंटेन रहे। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि आप सैनिटरी मतलब लाइक ड्यूरिंग मेंसेस आप सैनिटेशन के लिए क्या यूज़ कर रहे हो, सैनिटरी नैपकिन्स यूज़ कर रहे हो, मेंस्ट्रुअल कप्स यूज़ कर रहे हो, टैम्पून्स यूज़ कर रहे हो। सो बेसिकली व्हाट हैपेंस, हम यूजुअली पेशेंट्स को बताते हैं कि सैनिटरी नैपकिन यूज़ कर रहे हैं जो कॉटन के हो। सो सैनिटरी नैपकिन बहुत सारी कंपनीज में दोनों टाइप के आते हैं, कॉटन के भी आते हैं और दूसरे वो प्लास्टिक टाइप भी आते हैं। तो कॉटन पैड्स शुड बी रिटन ऑन द पैकेट, इतना आपने कंफर्म करना है कि उस पर कॉटन पैड लिखा रहे, और फिर आपने फील करके देखना है ये कॉटन जैसा होना चाहिए, तभी ये थोड़ा सा ब्रीदेबल मटेरियल होता है। ओके, एंड इस टाइप के जो प्लास्टिक पैड्स आते हैं वो आपको यूज़ नहीं करने हैं, जो प्लास्टिक जैसा आपको फील देते हैं, बिकॉज वो आपकी वजाइना का वेंटिलेशन पूरी तरीके से स्टॉप करते हैं एंड आप वजाइनल इन्फेक्शन होने के लिए काफ़ी प्रोन हो जाते हैं। थर्डली कप्स आते हैं। So these type of cups are readily available in the market. If they are not available in your city, तो आप इनको ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, या अपने सिटी के, अपने गांव के कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर्स से कंसल्ट कर सकते हो। ये बहुत ही इजीली अवेलेबल है, बहुत ही चीप है, आपको 300 से लेके 1000 रुपीज़ में इंडिया में भी ऑनलाइन आराम से मिलते हैं। अलग अलग 3 साइजेस में आते हैं, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। स्मॉल इज यूजुअली मेंट फॉर गर्ल्स जिन्होंने अभी तक मतलब लाइक दे आर नॉट मैरिड, दे आर नॉट सेक्सुअली एक्टिव। एंड अगर आप सेक्सुअली एक्टिव हो, अगर आपका सिजेरियन हुआ है तो आपको मीडियम साइज़ का ये साइज़ का कप आता है। एंड अगर आपका नॉर्मल डिलीवरी हुआ है तो इससे थोड़ा सा बड़ा साइज़ आता है, लार्ज साइज़ का कप, वो आपको आ सकता है। दिस वेरी इजी टू यूज़, यू जस्ट हैव टू पिंच इट लाइक दिस एंड यू जस्ट कैन इंसर्ट इट इनसाइड द वजाइना। पेशेंट्स इससे बहुत डरते हैं, पेशेंट्स को लगता है कि दिस इज सम फॉरेन बॉडी जो मेरे पेट के अंदर चली जाएगी।
सो ऐसी कोई जगह नहीं होती कि जहाँ से कोई छेद नहीं होता है जहाँ से वो आपके पेट के अंदर चला जाए। ये पेशेंट्स का सबसे बड़ा कंसर्न रहता है। सो बेसिकली हम क्यों बोलते हैं कि मेंस्ट्रुअल कप्स यूज़ करो, क्योंकि जब आप मेंस्ट्रुअल कप अंदर डालते हो तो मेंस्ट्रुअल कप आपके सर्विक्स, यूट्रस के मुंह सर्विक्स पे जाके बैठ जाता है और यहाँ से पूरा ब्लड इसमें कलेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट डे जब आप नहाते हो तो आराम से इसका ब्लड फेंक के इसको साबुन से क्लीन करके इसको रीयूज कर सकते हो। 5 years तक ये सिलिकॉन मेड होता है, एलर्जन फ्री रहता है। 5 years तक आप मेंस्ट्रुअल कप कंटिन्यूसली यूज कर सकते हो। आफ्टर दैट आपको उसको थ्रो करके न्यू वाला बाय करना पड़ता है। ओके, इसको जब आप यहाँ रखते हो तो होता क्या है कि आपकी ये पूरी वजाइना को, वजाइना इज ऑलमोस्ट 10 centimeters लॉन्ग, आपकी पूरी वजाइना को अच्छे से वेंटिलेशन मिलता है, इन्फेक्शन होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं एज कम्पेयर टू सैनिटरी नैपकिन। व्हाट वी डू, हम सैनिटरी नैपकिन यहाँ प्लेस करते हैं और वजाइना का वेंटिलेशन कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाता है। आप अपने हाथ को अगर 5 दिन के लिए पॉलीथीन बांधते हैं तो आपका हाथ कैसे मॉइस्ट हो जाता है। इट इज प्रोन फॉर इन्फेक्शन, स्पेशली फंगल इन्फेक्शंस। सेम थिंग अकर्स विद योर वजाइना ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। सो इसलिए हम प्रमोट करते हैं कि मेंस्ट्रुअल कप्स यूज़ करने चाहिए। अमेजिंगली हम पेशेंट्स को कई बार बोलते हैं कि ठीक है, यू आर नॉट मैरिड तो इट्स ओके, आफ्टर मैरिज यू स्टार्ट यूजिंग मेंस्ट्रुअल कप्स, स्पेशली पेशेंट्स हु हैव रिपीटेड vaginal infections. And wanted to ask that, is physical activity okay, like doing exercise, like walking, running, and doing the like work they are doing, so is it okay? See, moderate physical exercise is okay, and things which are used to your body, like जो आप रोज करते हो वो चल जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। एकदम किसी को बहुत हैवी मेंसेस है, किसी को एबनॉर्मली हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो डेफिनेटली हम पेशेंट्स को बोलते हैं, बिकॉज दे गो इनटू फटीग, दे हैव दैट वीकनेस बिकॉज ऑफ द ब्लड लॉस, तो उनको हम बोलते हैं थोड़ा आराम करने के लिए। अदरवाइज जो नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन है उसके साथ आप नॉर्मल डे टू डे आपकी एक्टिविटीज, इफ यू आर यूज्ड टू गोइंग टू द जिम, यू आर यूज्ड टू रनिंग, दैट इज ओके, नो प्रॉब्लम विद दैट। Okay, and the nutrient matters in this case, nutrient and food matter करता है, diet matter करता है. Does the diet really affect in the menstrual cycle? See, definitely normal menstrual cycle में if we see, लोगों को क्या लगता है सबसे इम्पोर्टेंट कि हमको बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होता है। सो जब आप सैनिटरी नैपकिन देखते हो, आपको टीवी में भी ऐड दिखाए जाते हैं, तो आपको ऐसे दिखाया जाता है वो थोड़ा सा पानी डालते हैं एंड देन वो पूरा स्टेन हो जाता है, तो देखने में ऐसे लगता है गर्ल्स को कि हमको बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होता है। ऐसा नहीं होता। यूजुअल मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस इज जस्ट 20 to 50 ml। 20 to 50 ml मतलब इट्स वेरी स्मॉल। अगर आप अपने कॉफ सिरप के ढक्कन से, कैप से अगर आप देखते हो तो 10 ml का तो वो कैप होता है, तो ऑलमोस्ट 20 to 50 ml ही ब्लड लॉस होता है, विच इज़ नॉट टू मच, बट स्टिल ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन आपको अपना डेफिनेटली 3 times जो 3 meals a day रहता है वो फॉलो करना है। अगर किसी को बहुत हैवी मेंसेस है तो वी डेफिनेटली रिकमेंड डाइट्स विच आर रिच इन आयरन, लाइक गुड़ आपने खाना चाहिए, अगर प्योर मिल रहा है तो आपको डेट्स लेने चाहिए, आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेने चाहिए, स्पेशली इन सैलेड, मतलब कच्चा लेना है, रॉ लेना है उसको, एंड बीटरूट, पिन खजूर वगैरह वो लेना चाहिए, अंजीर लेने चाहिए, एंड ड्राई फ्रूट्स वगैरह लेने चाहिए अगर आपका हीमोग्लोबिन उसकी वजह से ड्रॉप डाउन हो रहा है, यू आर हैविंग हैवी मेंसेस। अदरवाइज बाकी कोई डाइट में बहुत ज़्यादा स्पेशल कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। Okay, means this can help a lot. दिस कैन हेल्प अ लॉट। So out of this, up to what nutrients should women pay special attention to? सी स्पेशल अटेंशन उनको वो न्यूट्रिएंट्स को देना है जिससे अपना हीमोग्लोबिन बिल्डअप होता है। सो हीमोग्लोबिन बिल्डअप होने के लिए आपको आयरन रिच डाइट डेफिनेटली चाहिए एंड सिट्रस फ्रूट्स चाहिए। सो आयरन रिच डाइट में आपका डेट्स है, गुड़ है, जगरी, एंड पिन खजूर है, डेट्स एंड फिग, अंजीर वगैरह, एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो आपको आइडियली रॉ खाने चाहिए, सलाद में खाने चाहिए, एंड सिट्रस फ्रूट्स। सिट्रस फ्रूट्स आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, तो इससे भी आपका हीमोग्लोबिन अच्छा बिल्डअप होता है। लाइक जो अम्बट फ्रूट्स, खट्टे फ्रूट्स जो रहते हैं वो आपको लेने चाहिए। Okay ma'am, so I got it about this, but मैंने कहीं तो सुना है कि like PCOS के बारे में, so ये कहीं nutrients के बारे में जाकर कनेक्ट होता है, मतलब exactly? सी PCOS बेसिकली पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है जो न्यूट्रिशन का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम की वजह से होता है, विच इज़ ओवर न्यूट्रिशन बिकॉज ऑफ योर फिजिकल इनएक्टिविटी एंड योर स्ट्रेस। सो फिजिकल इनएक्टिविटी अगर हम देखेंगे तो जैसे पुराने ज़माने में हम देखेंगे बिफोर 30-40 ईयर्स PCOS यूजुअली होता ही नहीं था। PCOS होना ही तब से शुरू हुआ जब से फिजिकल एक्टिविटी शुरू हो गई। सो गर्ल्स पहले बहुत ज़्यादा एजुकेशन नहीं लेती थी, घर के कामों में मम्मी की हेल्प करती थी, तो फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी जो कि अब कम हो गई। अब गर्ल्स बहुत ज़्यादा जॉब करने लगी है, मैक्सिमम टाइप्स ऑफ जॉब्स आर सेडेंट्री ओनली, तो बिकॉज ऑफ देयर सेडेंट्री लाइफस्टाइल ऑल्सो एक जगह पे बैठे रहने से उनको हार्मोन्स का प्रॉब्लम होने लग जाता है। सेकेंड इज योर स्ट्रेस इंक्रीज हो गया है बिकॉज गर्ल्स बहुत ज़्यादा एजुकेशन लेने लगी है, बहुत ज़्यादा जॉब करने लगी है, सो देयर स्ट्रेस इज इंक्रीज। थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट इज न्यूट्रिशन। सो न्यूट्रिशन का जो ड्यूअल प्रॉब्लम है इंडिया में, एक है माल न्यूट्रिशन, एक है ओवर न्यूट्रिशन, ये बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है। सो ओवर न्यूट्रिशन की वजह से क्या होता है, व्हेन पीपल आर वेल टू डू इन देयर लाइफ्स, सो व्हाट हैपेंस,
दे गो फॉर टेस्टी फूड विच आर यूजुअली जंक फूड्स वी नो। तो जंक फूड की वजह से एंड आपका जो नॉर्मल जो न्यूट्रिटिव फूड रहता है वो आप कम खाते हो, आप जंक फूड ज़्यादा खाते हो, जिसकी वजह से आपको सेंट्रल ओबेसिटी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। सेंट्रल ओबेसिटी मीन्स आपके पेट के आसपास, आपके कंधे के आसपास, कमर के आसपास ओबेसिटी ज़्यादा हो जाना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है PCOS में, क्योंकि ये ओबेसिटी होने की वजह से आपका जो फैट है, सेंट्रल फैट, वो आपको दो चीज़ों को प्रिडिस्पोज करते हैं। आपके फीमेल हार्मोन्स को आपके मेल हार्मोन्स में कन्वर्ट करने लग जाता है और आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट करने लग जाता है। सो इंसुलिन आपकी बॉडी में नॉर्मल रहता है, बट देन वो आपके सेल्स को नहीं पहुंच सकता क्योंकि वो फैट उसको कवर कर देता है, सेल के रिसेप्टर्स को कवर कर देता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में इंसुलिन बढ़ जाता है और इसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा होने लगता है और वो होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। So many women feel tired during periods and they think that it's normal. So is it really normal? See, little bit of tiredness, little bit of dizziness is normal during menstruation. But अगर आप बहुत ज़्यादा थकान फील कर रहे हो, जैसे लोगों को सीढ़ियाँ चढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, नॉर्मल जो फिजिकल एक्टिविटी है उसमें लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, लेडीज़ बताती है कभी कभी हमें खाना बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, जो हाउस चोर्स हम पहले आराम से कर लेते थे वो अब हम नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे टाइम पे आपको डेफिनेटली मेडिकल एडवाइस सीख करनी चाहिए। हो सकता है आपका हीमोग्लोबिन कम हो रहा हो सकता है आपका न्यूट्रिशन लेवल कम है, तो डॉक्टर उतना फिल कर देंगे। So many women hesitate to discuss heavy bleeding. They think that the blood flow they are like occurring that it is a normal one. So how can one identify that they are going through the normal bleeding or else heavy bleeding? So how can we identify that? ओके, सो बेसिकली इट डिपेंड्स कि वुमेन की, जैसे मैंने पहले बोला था कि पहले की साइकिल कैसी थी। सो अगर आपकी साइकिल 4 डेज़ की है, नाउ यू स्टार्टेड ब्लीडिंग फॉर 7 डेज़। अगर पहले आप डेली 2 पैड्स 4 पैड्स सोक करते थे, अभी आपके 5 6 7 पैड्स होने लग रहे हैं, तो वो यूजुअली एबनॉर्मल होते हैं। बट देन अगर हम डिफाइन करें तो इफ़ इट्स गोइंग फॉर मोर देन 7 डेज़, 7 दिन के ऊपर जा रही है, या एक दिन में आपके 5-6 पैड या उससे ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, यूजुअली व्हाट विमेन कंप्लेन कि जब हम एकदम से उठते हैं, लेट के उठे या फिर एकदम बैठ के उठे, तो सडन गश ऑफ ब्लड होता है और हमारा पैड पूरा सोक हो जाता है, कभी कभी ओवरफ्लो होकर हमारे कपड़े भी स्टेन हो जाते हैं। कई बार हम जब वॉशरूम जाते हैं तो वॉशरूम जाने के टाइम पे हमारे बहुत सारे क्लॉथ्स निकलते हैं, तो दिस इज़ द यूजुअल कंप्लेन। पेशेंट्स को तभी क्लिक होता है कि अब हाँ ये एबनॉर्मल हो रहा है। यूजुअली नंबर ऑफ पैड्स थोड़े बहुत इंक्रीज़ हुए तो उससे इतना समझ में नहीं आता है, बट दिस इज़ द यूजुअल कंप्लेन पेशेंट्स, दिस इज द यूजुअल कंप्लेन विच स्ट्राइक द पेशेंट कि हमको कुछ तो एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग हो रही है। Okay, and what is exactly abnormal uterus bleeding? एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग इज़ एबनॉर्मेलिटी इन योर यूजुअल मेंस्ट्रुएशन। तो आपका जो यूजुअल मेंस्ट्रुएशन है उसमें कुछ ना कुछ एबनॉर्मेलिटी हो गई है। अच्छा, इसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ मेंस्ट्रुएशन भी, लाइक अभी तो हमने बात की कि हैवी ब्लीडिंग हो गई, ठीक है। इसमें और भी कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग। आपको ब्लीडिंग ठीक ठीक हो रही है, बट देन जैसे मैंने मतलब मोर देन 7 डेज़ के लिए ब्लीडिंग हो रही है। आपका जो फ्रीक्वेंसी ऑफ साइकिल था, जैसे अर्लियर यूज्ड टू हैव लाइक 28 to 30 डेज़ का जो हम परफेक्ट साइकिल बोलते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा लाइक एकदम शॉर्ट साइकिल्स हो गए, लेस देन 21-22 डेज़ या फिर मोर देन 35 डेज़ का साइकिल हो गया, तो उसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ मेंस्ट्रुएशन में चेंज आ गया है। या हम बोले कि नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन आ रहा है, बराबर 1 मंथ में आ रहा है, पर बीच में कहीं ना कहीं आपको मिड मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है, बीच बीच में कभी कभी स्पॉटिंग हो जाती है या ब्लीडिंग हो जाती है। इन सब चीज़ों को अपन एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग में काउंट करते हैं। Okay, but I have seen that there are a lot of women who thinks that this is normal due to the age or after giving a birth to the child, this is normal. So what's your point on that? सी, जैसे हम आफ्टर चाइल्ड बर्थ की बात करें तो इट यूजुअली हैपन्स क्योंकि यूट्रस का साइज़ धीरे धीरे कम होने लगता है। तो फॉर स्टार्टिंग समझिए किसी को 3-4 डेज़, किसी को 1 to 2 वीक्स ब्लीडिंग रहती है, एंड देन धीरे धीरे इट टर्न्स टू बी पिंक, एंड देन धीरे धीरे वो येलो वाइट होकर स्टॉप हो जाती है। बट देन इट कैन टेक 6 वीक्स, 1.5 मंथ्स लग सकते हैं। पर इस 1.5 मंथ में अगर किसी को कंटिन्यूसली ब्लीडिंग हो रही है, उसकी वजह से उसको फटीग होने लग रहा है, डिजीनेस हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, कमजोरी लग रही है, तो हाँ डेफिनेटली दैट पेशेंट शुड कंसल्ट द डॉक्टर। एजिंग के साथ हम बोलें, जैसे मेनोपॉजल पेरीमेनोपॉजल एज में कई बार पेशेंट्स को एबनॉर्मली थोड़ा ज़्यादा ब्लीडिंग होता है। ये हार्मोन्स की वजह से थोड़ा बहुत हो सकता है, बट अगेन अगर उसकी लाइफस्टाइल पे कहीं हैम्पर हो रहा है तो फिर हमको डेफिनेटली डॉक्टर को दिखाना चाहिए। So doctor, apart from periods, what are some common gynecological problems a woman should not ignore? See, usually pelvic pain. So if the patient is having pelvic pain apart from menses, so आपको पीरियड्स नहीं है फिर भी आपको नीचे के पेट में दुख रहा है, ओके आपको पीरियड्स में जैसे नॉर्मली पेन होता है एंड गोलियों से ठीक हो जाता है, दैट इज़ ओके। अगर आपको पेन किलर्स की इंजेक्शंस की ज़रूरत पड़ रही है, अगर आपको अपने स्कूल मिस कर रहे हो, कॉलेज डेज मिस आउट कर रहे हो, या ऑफिस वर्क ये कर रहे हो, आपकी मोबिलिटी बेसिकली वही आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे कोई फ़र्क पड़ रहा है, या फिर आपको एबनॉर्मल वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, नॉर्मल थोड़ा बहुत वाइट डिस्चार्ज
फीमेल्स को समझता है कि महीने में 2-3 दिन के लिए ऐसा 2 बार होता है, ओवुलेशन के टाइम और पीरियड्स के थोड़ा सा पहले। बट देन अगर वो एबनॉर्मली हो रहा है, कंटिन्यूस थ्रू आउट द मंथ हो रहा है, उसमें इचिंग है, फाउल डिस्चार्ज है, कोई ख़राब स्मेल आती है उसमें से, तो ये चीज़ें एबनॉर्मल होती हैं। प्लस कभी कभी पीरियड्स में क्या होता है, कुछ फीमेल्स को थोड़ा बहुत ब्रेस्ट पेन होता है, चिड़चिड़ होती है, थोड़ा सा कभी कभी क्राइंग एपिसोड्स होते हैं, रोना आता है, एंड हल्का सा वॉमिटिंग जैसा लगता है, थोड़े से बिहेवियर ऐसा लाइक मूड डिप्रेस्ड हो जाता है। सो दिस इज़ ओके। बट देन अगर ये बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, अगेन आप अपना जो नॉर्मल लाइफस्टाइल है उस पर फ़र्क पड़ रहा है, रोज़ की डेली एक्टिविटीज़ आप नहीं कर पा रहे हो, आपको बहुत वॉमिट होती है, किसी किसी को बहुत ज़्यादा लूज मोशन शुरू हो जाते हैं, एंड मतलब लाइक किसी किसी का रोना शुरू हो जाता है, बहुत ज़्यादा क्राइंग एपिसोड्स रहते हैं, अगर इस टाइप का एबनॉर्मल बिहेवियर रहता है तो फिर डेफिनेटली आपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। ये कुछ एबनॉर्मल अदर फाइंडिंग्स अदर देन पीरियड्स। Okay, and regular checkup matters as well? डेफिनेटली अगर आपको लगता है ये सही कोई कंप्लेंट्स हैं तो डेफिनेटली फिर आपने दिखाना चाहिए। Okay, so doctor, now we will do a quick myth versus fact round. So like number 1 I'm having is women should avoid bathing during periods. This is a big myth. Women should bath daily and they should keep their genitalia clean, like I said before. Okay, and myth number 2 is severe period pain is always normal. नहीं, सीवियर पीरियड पेन इज़ नॉट, मतलब ऐसा नहीं है। मैंने कई बार देखा है चीज़ कि पेरेंट्स लड़कियों को बोलते हैं कि अगर तुम पेन किलर ज़्यादा लोगे तो तुमको आगे जाके बच्चा नहीं होगा, इनफर्टिलिटी होगी। दिस इज़ अ बिग नो। एंड कई बार उनको लगता है पेन किलर से किडनी डैमेज होता है। बीच में बहुत ज़्यादा मेफेनामिक एसिड के लिए आया भी था, तो देर आर अदर टाइप ऑफ पेन किलर्स ऑल्सो। बट डेफिनेटली अगर आपको इतना पेन हो रहा है अगेन कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, जॉब नहीं कर पा रहे हो, तो फिर डेफिनेटली आप अपने डॉक्टर को मिलिए, वो आपको दे एडवाइस फॉर गुड पेन किलर, एंड देन वो लेके आप अपनी नॉर्मल रूटीन लाइफ करनी है। अगर वो पेन किलर से भी आपको आराम नहीं मिल रहा है तो हाँ, डेफिनेटली इट्स अ प्रॉब्लम एंड देन यू शुड गेट इन्वेस्टिगेटेड। Okay, and the another myth we are having is heavy periods are something women simply have to tolerate. नहीं, डेफिनेटली नो, ऐसे नहीं है। हमने जैसे डिस्कस किया, जब भी कुछ एबनॉर्मल लगता है डॉक्टर को एडवाइस करिए, आपको कुछ टॉलरेट करने की ज़रूरत नहीं है। Okay, and the next one is myth number 4, talking about periods openly is inappropriate. ये बहुत ही बड़ा गलती है। ये हमने स्टार्ट जब किया था तभी हमने ये चीज़ बताई थी कि इंडिया में पीपल आर रिलक्टेंट टू टॉक अबाउट ऑन दिस टाइप ऑफ टॉपिक्स विच इज़ वेरी रॉन्ग। इसी की वजह से मैक्सिमम लोग जो बात करना चाहते हैं वो भी दब जाते हैं और उनको लगता है कि नहीं, कोई इस बारे में बात नहीं कर रहा तो मुझे भी इस बारे में बात नहीं करनी, क्योंकि इसको गलत माना जाता है। So doctor, before we wrap up, आप ऐसा कोई मैसेज देना चाहते हो कि जो अपने सारे लिसनर्स हमेशा याद रखें? Basically, menstrual health is an important indicator of overall health of women. So you should never delay in seeking medical advice if you find any problem in your periods. And मुझे लगता है डॉक्टर्स ने, पेरेंट्स ने और एजुकेशन सिस्टम में टीचर्स ने, हम सब ने हाथ मिलाकर अपने जो यंग जनरेशन है उसको समझाना चाहिए कि मेंस्ट्रुएशन इज़ अ नॉर्मल बायोलॉजिकल प्रोसेस। जो मेंस्ट्रुअल फ्लो, आप ब्लड फ्लो देखते हो, वो यूट्रस की इनर लाइनिंग होती है जो प्रेगनेंसी के टाइम पे बच्चे को माँ से खून लेने में हेल्प करती है। अगर ये बात बच्चों को समझाई जाए, यंग जनरेशन को बताया जाए, तो वो इसको एक नॉर्मल बायोलॉजिकल प्रोसेस के जैसे देखने लगेंगे। उनको इस बारे में बात करने के लिए बिल्कुल भी हिचकिचाने की या शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सब हाथ मिलाकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। So thank you so much doctor for such a practical and informative discussion.